तो कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा स्टोरी स्टार्टिंग से लेके, Yeah, मतलब so हाँ इंटरेक्टिव basically, बनाते हैं। yeah. So basically, there was this evening, and I got drunk in that evening, and I thought it's gonna be fun because the next day was a holiday. But when I woke up the next day, it turned out to be really horrible, and I had like really good quality hangover. So I thought that it's gonna stay here for like couple of hours maybe, but after हम्म। that, even शाम के 7-8 बज चुके थे फिर भी मेरा फीवर जा नहीं रहा था मेरा हेडेक जा ठीक है। नहीं रहा था सो आई थॉट दैट दिस कैन बी डेंगू और मलेरिया because I was following my quarantine, I was following the lockdown very religiously, and I हम्म। was doing every kind of thing that was possible, but still I did not thought कि मेरे को COVID होगा. So I just called my family doctor. I told him, look, these are the symptoms. Do you हाँ। think it's malaria or dengue? I was हम्म। very sure it has to be something between these two. ठीक है। So he told me that look, your symptoms do not look like it's malaria or dengue or हम्म। pneumonia or हम्म। typhoid or some basic हम्म। Indian बीमारियां जो 2-3 हफ्ते में हो गई. हाँ। But yeah, he said that it looks like COVID-19. So what I'm gonna do is I'm gonna give you a prescription. Take this and get yourself checked, and then we'll see what happens after that. So the doctor gave me the prescription on WhatsApp. Now it's not allowed, but back in first May, like May first week, it was allowed to get a prescription via WhatsApp and then show it to the center, and then they would test you. ओके ओके। So I went to the private center because everyone is skeptical about the सरकारी center. कभी भी हम्म। positive का negative हो जाएगा. So ठीक है। I went to the private one. I paid my hard-earned 4,500 rupees to get myself tested, and in 24 hours I got my result that said, I am COVID positive. Congratulations. So, सिम्टम्स पहले क्या लगा कि सिम्टम्स क्या है, और बाद में क्या so हुआ, कैसे हुआ? symptoms are very generic, very normal. You would हम्म। feel it's viral fever. हम्म। Coincidentally, you would feel it's viral fever, and then you would feel it's हाँ। flu. हाँ। Maybe लगेगा कि ये सर्दी है किसी टाइप की. Yeah, हाँ। you're just going, you're down with the weather or something like that. But हाँ। yeah, the symptoms are very basic. So my eyes were watery. I could not, wake out of. मतलब मैं मेरे बेड से उठ नहीं पा रहा था. I अच्छा। was coughing. I couldn't eat anything. Yeah, that was a major, that was a major, very major symptom. That I हम्म। couldn't eat anything. If I'm eating हम्म। anything, मुझे भी पता है प्यार से मम्मी ने मशरूम की सब्जी बनाई थी. I ate like 1.5 plate of it because I remember, asking her for some more. And ओके। 15 मिनट के बाद मैंने पूरी उल्टी कर दी. So that is a very ओके। major symptom of तो बेड्स की कितनी कितनी दिक्कत है एक्चुअल में? सो बेड्स की प्रॉब्लम है. मैं So where कलकत्ता are से हूँ। you from? आई एम Yeah, you're कलकत्ता, from हाँ Calcutta, right? या। Yeah. या। So things are still fine in your city. Like when you हम्म। say Calcutta, चेन्नई और चेन्नई का थोड़ा अभी सीवी थोड़ा मीडियम चल रहा है. But हम्म। Calcutta, Bangalore, Lucknow, they are like fine, doing fine right now. But Mumbai, Delhi, and Ahmedabad things are really horrible in these cities. हम्म। Yeah, we have 4 levels of dedicated like zones. Sorry, dedicated healthcare levels, you could say. ठीक Each है। city or each municipality corporation has their own. So हम्म। in Bombay, I'm assuming Calcutta has some other names for it. So हम्म। in Bombay, we have triple C1, triple C2, then we have DCHC, and then we हम्म। have dedicated has coronavirus hospital. So ठीक है। triple C1 is basically the basic quarantine center. आप कहीं से आए हम्म। हो दुबई वगैरह से, then you are kept there for 14 days. हम्म। Then triple C2 is for mild positive patients. ओके ओके। So the misconception people have is अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया then I have to get admitted in a hospital, and if I don't get admitted then I worse can happen, like I might हाँ। die. That राइट is not राइट। true. So हम्म। this is what I came to know that evening of the getting positive when the हम्म। BMC. So you have Kolkata Municipal Corporation. We यस have यस यस। Brihan Mumbai Municipal Corporation. That is Mumbai's corporation. So that हम्म। doctor called me and he explained me that look, you're हम्म। young, you're 26 years old, and you do not have any kind of disease with you. हम्म। हम्म। So there is absolutely nothing you should be worried about. हम्म। We are transferring you to a triple C2 center. So ओके। basically, it has corona positive patients, but they are हम्म। very mild symptomatic, ओके or they do ओके। not have any kind of symptoms at all. So any kind of symptoms is basically तुझे कोरोना वायरस हो गया और तुझे पता भी नहीं चलेगा. तेरी हम्म। बॉडी ने अपने आप इससे रिकवर कर लिया, and you recovered of it, and it will never happen to you again, and तो you would पता कैसे not know चलता है about यार? it. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मैं There's no way to find out. मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ यार, ठीक है? मैं सो हाँ. आई एम अभी फिट एंड फाइन, थैंकफुली सब कुछ बढ़िया Yeah. चल रहा है, घर पे हूँ, Mm-hmm. 2 महीने से घर पे हूँ, निकला नहीं हूँ, ठीक है? Mm-hmm. आई एम अज्यूमिंग मोर देन 50% पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक। 80, more than 70% ओ people are वाओ, asymptomatic. डैम। ठीक है, तो Yeah. मोर देन 70%, दैट्स अ ग्रेट नंबर, ठीक है? तो उसके बाद मतलब असिम्प्टोमेटिक है तो ऑब्वियसली सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो मेरे जैसा फिट एंड फाइन बंदा को क्या टेस्ट कराना चाहिए क्या? No, not necessary, dude. So if you are fit and absolutely fine, if your family is doing absolutely fine, and then if you are going to test, so you need to understand that India's infrastructure is not that developed. बट अगर आप फिट एंड फाइन हो बेमतलब का, तो आपको जरा सा भी किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज, यू नो, keep it very less, keep your traveling very less, because what really happens is if you're so let's just say जैसे अगर आपको symptoms नहीं है, you're absolutely asymptomatic, but you're still a problem, because if you're gonna go to 100 places, you would basically, you know, donate coronavirus to different kinds of people. For example, for your building example, you said that there might be a possibility of people who have coronavirus and they do not know. उनको क्या जरूरत है बाहर निकल के वॉक करने की? अगर वो बाहर निकल के वॉक करते हैं, उनका फ्रेंड मिल गया, हाई फाई कर दिए, नहीं मतलब पता ही नहीं ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं कुछ है कि नहीं. Only way to find out is RT-PCR test. That's it. I'll give an example. So my lifestyle is very horrible. Like, you know, I have long working hours, and when I got this virus, I was not, my body was mentally not prepared. Plus I had hangover. So maybe, you know, my body was confused. इसका hangover क्यों करूँ, इस virus को क्यों करूँ, or whatever. Then I got stuck in this situation. But for a lot of people, you know, that is not the case at all. Like, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. So there's nothing to be worried about as such. Okay, ठीक है. So जब पता चला कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो घर का क्या माहौल था, मतलब किस किस को हुआ, फिर क्या था स्टोरी? So yeah, the basic जो क्लीशे होता है हर भारतीय फैमिली में, that, you know, my son is gonna die, whatever, जो भी है, XYZ. So the doctor, after 3 days, he got my family tested, like my entire family tested. Basically, my younger sister, elder sister, and my mother. So I was not making contacts with my mom and my elder sister for 3-4 days. जब मुझको लगा कि भाई मेरा विकेट गिर सकता है. And my younger sister was taking care of me. But when the results came, my younger sister was tested negative, and my mother and my elder sister, I'm so sorry, my mother and my elder sister got tested positive. So they were shifted. So even they were absolutely asymptomatic. My mom is, just to let you guys know, my mom is 62 years old. She is diabetic. She has arthritis problem, and she just had like eyes operation like 2 years ago. She can be an ideal in, like, if I'm from mainstream media, I would say my mother is from that ideal category of coronavirus patients who are suffering. But when my mom tested positive, she did not show a single sign. She was absolutely asymptomatic. She did not cough even once, did not got a fever even once. For 10 days, my mother was cribbing, not because she had coronavirus, but because she wanted to go home from that Sarkari center. So that is what happened, dude. Like, और जो बड़ी बहन थी उसको भी पॉजिटिव था उसका? Absolutely नहीं, बड़ी बहन का तो टेंशन ही नहीं. अगर मेरी मम्मी को है तो even my elder sister was, like, you know, absolutely asymptomatic. They both were there for 10 days and then they came back home. But the scene with me was, I was in that center for 6 days and my fever was not going. So what they did was, उन्होंने मुझे जो ट्रिपल सी टू सेंटर है वहां से डायरेक्ट 4th स्टेज पे लेके चले गए. That was a legit full-fledged hospital. So मुझे उस हॉस्पिटल में लेके चले गए. That hospital is called Cooper Hospital, and they kept me there for 3.5 days, and that's it. So वहां पे मुझे, you know, they injected me with a lot of medicines, a lot of, you know, solutions, and they gave me 12 to 13 tablets each shift, like Monday, नहीं, sorry, सुबह 12 टैबलेट, शाम को 12 टैबलेट, दोपहर को 6-7 टैबलेट, and it was that amount of medications I was given. So I was fine after, like, in one day I was absolutely fine. Second और third day तो मेरे को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. And you know, मतलब तीसरे दिन के लास्ट में doctor came, he said, do you look fine? I said absolutely. Then he said, okay, you can directly go home if you promise that you're gonna be inside your home for 14 days. I said, sir, I can be inside for 28 days. He said, no, not necessary. So 14 दिन काफी है, and that's it. Then he shifted me from Corona hospital to my home. पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब जब पता चला कि पॉजिटिव हुआ है तो पहला बात तो सब कुछ मतलब आइसोलेट कर गया, एंड देन आंटी को भी हो गया, एल्डर सिस्टर को भी हो गया, बट देन योर यंगर सिस्टर वाज नेगेटिव थैंकफुली. तो पूरा प्रोसेस बताओ ना, मतलब हॉस्पिटल ले जाने तक हॉस्पिटल का सीन, so let's just say it's day 1. It's day 1. You test yourself. Fine. It takes 24 to 36 hours if you are in a private. If you tested in a private facility, it would take 24 hours. If it's a Sarkari, then it might take even 96 hours right now. बहुत ज्यादा बैकलॉग चल रहा है ब्रो. मतलब सैटरडे संडेज को भी, you know, labs 24/7 चालू है. So
I'm so sorry. Yeah. Go ahead, yeah. Yeah. So second day पे you would get your results, ठीक है। and you get your results mostly on the first half. So second half तो पहले first half को वो हॉस्पिटल वाला या क्लिनिक वाला तुम ये लैब वाला तुम्हें फोन करके बोल देगा कूल। शाम को तुम्हें जो तुम्हारा लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तुम्हारा केएमसी है, मेरा बीएमसी है, so ideally a doctor from municipal corporation should call you and tell you and ask about you that कि क्या है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप कंजेस्टेड लोकेलिटी में रहते हो, आप कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो। If he is convinced that you know you're young and you're absolutely fine and तुमको घर पे बंद रख सकते हैं, तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा सा कमरा है, उसमें वॉशरूम अटैच्ड है, फैमिली कैन जस्ट पुट सम फूड फॉर यू along with some tablets, then तुम्हें घर पे ही वो लोग ठीक करवा देंगे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी किया है। इवन मुंबई गवर्नमेंट has started कि तुम्हें इफ यू आर फ्रॉम अ रियली वेल टू डू फैमिली देन तुम्हारा घर में ही क्वारंटीन हो जाएगा या घर में ही तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा इफ यू आर असिम्प्टोमेटिक। आई एम टॉकिंग ओनली इफ यू आर असिम्प्टोमेटिक। If you are symptomatic, then they would try to find a hospital for you. If they cannot find a hospital for you, the BMC doctor he has a live list कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो वो तुम्हें शिफ्ट कर देगा कोई क्वारंटीन सेंटर में या कोई आइसोलेशन सेंटर जो मेक शिफ्ट होता है वहां पे। ओके, सेकेंड डे का रात है, सो आइडियली रात को या 24 घंटे में थर्ड डे पे एक एम्बुलेंस आएगी सरकारी वाली, तुम्हें पिकअप करके लेके चले जाएगी and they would take you to the nearest hospital ward or isolation center. ठीक है। That's it. That is day and so मेरा day 2 पे ही हो गया था and day 3 पे you know I went to the center. It was absolutely very you know काफी तुम जाओगे उस सेंटर में फर्स्ट टाइम तो तुम्हें पता चलेगा कि हद से ज्यादा you know नेगेटिविटी और टेंशन है वहां पे। There's a lot of tension happening there. ठीक है। So you go there, you sleep and then you wake up in the morning. So here's the routine. That is day 4 where you let's just say day 4, okay. तो day 4 में तुम्हारा रूटीन स्टार्ट होता है। So that is सुबह 9 बजे तुम्हें चाय मिलेगी एंड नाश्ता मिलेगा। So we are in Mumbai, so we basically get पोहा और उपमा। तो खाना कैसा है वहाँ पे? खाना is very subjective to be very honest because we are talking about Mumbai. We have like hundreds of quarantine centers and these centers get food from hundreds of NGOs and caterers. पोहा था, उपमा था, जो भी है एक डिश आपको मिलेगी। लोकल स्पेशलिटी अगर आपके साइड की कुछ है तो वो भी आपको मिलेगी। जैसे दिल्ली में आई हैव बीन टोल्ड चीला मिलता था लोगों को ब्रेकफास्ट में। ओके, ठीक है। आफ्टरनून में नहीं 11-12 बजे के आसपास यू गेट योर डेली मेडिसिन। दैट इज बेसिकली पैरासिटामोल, जिंक सल्फेट एंड आपके एज और आपकी को लाइक आपके सिम्टम्स देख के डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं। एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन। तो वो आपको मिल जाएगी सुबह 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको लंच मिल जाएगा। बेसिकली रोटी, सब्जी, दाल और चावल। मेरे सेंटर के चावल में की बहुत कंप्लेन थी बिकॉज बहुत ज्यादा चावल था। देन शाम के 4 बजे तक आपको चाय मिल जाएगी। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पार्ले जी मिलेगा, अगर आपकी किस्मत उस दिन खराब है तो टाइगर मिलेगा। So you have to deal, yeah. You basically, you know, give it to your. बातें हैं बहुत। अब छोटी बातें लगती है यार कि पार्ले जी, टाइगर वगैरह, अभी तो यार डोंट फोकस ऑन दैट। नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ी बात है भाई, वहाँ पे बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। Got it. Yeah. Then शाम के 6-7 बजे नर्स आएगी and she would test your body's oxygen levels. एक छोटा सा स्टेपलर टाइप का डिवाइस होता है, they would put on your finger and they would check if it's more than 95% they are happy, you are happy, everyone is happy and she would test your temperature शाम के टाइम पे and रात के 8 बजे you would get your food and you would sleep. तो बेसिकली वहाँ पे स्पाइक गार्ड की बहुत मारामारी चलती रहती है। So it's always better to get your own spike guard. like एक सॉकेट में लगा दो, तीन आउटलेट बन जाएंगे, जो वार्ड में झगड़ा होता है वो खत्म हो जाएगा तुम्हारे 100 रुपए के एक्सटेंशन कॉर्ड से। So, you can charge your phone, you can watch videos. And since you all have coronavirus, so you can actually chat with people. You can, play cards with them. तो एक रूम में कितने लोग हैं, कितने पेशेंट्स हैं? एक रूम में मुंबई में 4 है। I've been told Tier 2 cities में 6 या 7 लोग भी है एक कमरे में। It should not be more than 8. तो आराम से बात कर सकते हो? आराम से बात कर सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, बट मतलब करना एडवाइजेबल है बिकॉज नाउ यू वुड से कि यार अभी हमें 10 दिन यहाँ पे रहना पड़ता है, तो डे 9 पे लेट से 9वें दिन पे अगर यू आर लेट से खुदा ना खास्ता कभी तुम्हें हो गया तो तुम 9वें डे पे तुम अज्यूम करोगे यार मेरा 9th डे है, कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड अ गाय फ्रॉम डे 1 कम्स एंड ही हग्स यू एंड ही शेक्स हैंड्स विद यू एंड ही गिव्स यू हाई फाइव वगैरह। सो नहीं, अभी तुम्हें लग रहा है कि उसकी बीमारी मुझे वापस हो जाएगी,
हाँ That is हाँ। wrong. ओके It will not ओके happen. Yeah, ओके, it will not तो happen. मतलब अगर एक बार हो गया तो सेकंड बार नहीं होगा। एक बार हो गया तो सेकंड बार नहीं हुआ भाई। पूरे वर्ल्ड में अभी तक हाँ व्हाट देयर आर 74 लाख केसेस। हाँ। हम लोग अभी एक करोड़ क्रॉस करने वाले बहुत जल्दी। 74 लाख केसेस, नॉट अ सिंगल केस फ्रॉम अ रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी दैट सेड कि वापस से इसको केस हुआ। नो, ओके। साउथ कोरिया की एक खबर आई थी कि 2 बार हो चुका है कोरोना वायरस, बट दे हम्म चेक्ड इट। सो पीसीआर टेस्ट के टाइम पे बताते हैं कि पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर फॉल्स पॉजिटिव हम्म भी आ सकता है या फॉल्स नेगेटिव भी हम्म। आ सकता है। सो इट वाज इन द सेम प्रोसेस। बट मैंने अभी तक एक पेशेंट भी नहीं देखा जो पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, उसके 3 महीने के बाद वो वापस पॉजिटिव आया। नॉट अ सिंगल केस ऑफ दैट। सीन क्या है हॉस्पिटल में, मतलब काफी टेंशन है, पैनिक है। इफ यू गेट कोरोना वायरस देन 80% चांस है कि तुम हॉस्पिटल जाओगे भी नहीं। तुम्हें जो छोटे मोटे जो सेंटर्स बना के रखे उसमें डॉक्टर दवाई खिला के निपटा देंगे, तो उसका तो अच्छा। है ही नहीं। बट तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओके एंड जैसा कि ओके। एक बहुत कमेंट आ रहा है कि शॉर्टेज ऑफ बेड है। यस, डेफिनेटली शॉर्टेज ऑफ बेड है। इसकी वजह से हॉस्पिटल क्या करती है कि आपका 10 दिन का ट्रीटमेंट है ना, हम्म। तो आपको सिर्फ जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है सिर्फ 3-4 दिन के लिए है। ओके। नाउ आई वुड से कि इट्स बेसिकली लाइक अ तुम कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे में तुम बैठे हो कि समझ गया आधी दूरी मैं बैठ जाता हूँ, आधी दूरी तू बैठ जा। तो अगर समझ प्राइवेट गया। हॉस्पिटल में एक आदमी को ठीक करने के लिए 10 दिन लग रहा है तो 10 दिन के लिए हम्म बेड ऑक्यूपाइड है। हम्म सरकारी हॉस्पिटल क्या मतलब क्या क्लेवरली खेल रहे हैं कि अगर तुम्हें कोविड-19 है और मुझे हम्म पता है बेड की हद से ज्यादा जरूरत है, तो जो हम्म तुम्हारे क्रूशियल 3 डेज है हम्म। सिर्फ उसी दिन में तुम्हें हॉस्पिटल में रखूंगा, उसके बाद में हम्म, तुम्हें वापस सेंटर भेज दूंगा, ताकि ठीक है। हॉस्पिटल का जो बेड है और जो फैसिलिटीज है और जो डॉक्टर का जो एक्सेसिबिलिटी है वो हम्म ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को मिले। हम्म। सो दैट हैपेंड इन माय केस। सो 6th डे पे भी मेरी तबियत ठीक नहीं हो रही थी, तो दे शिफ्टेड मी टू द सेंटर एंड 3-3.5 दिन में मैं ठीक होके वापस आ गया। मैं तो डायरेक्टली घर रिकव पे आया, मुझे सेंटर में नहीं भेजे हम लोग ने। तो रिकवरी का कोई फिक्स शेड्यूल है कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, या फिर किसी को कोई 4 दिन में भी ठीक हो सो सकता है, किसी को आइडियली 15 दिन भी लग आइडियली सकता है। आइडियली इट शुड टेक एन एवरेज इंडियन नॉट मोर देन हम्म 7 days टू रिकवर। ये लोग तो अच्छा। 10 दिन फिर भी बोल रहे हैं, जो दिन से आप टेस्टेड हो, पॉजिटिव हो, हम्म तो हम्म। उसके 2 दिन पहले से ही आपका मीटर डाउन हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि ठीक है। यार बीमारी तो इसे तो तुम्हारा मीटर डाउन हो गया, तीसरे दिन पे तुमने टेस्ट कराया, चौथे दिन पे रिजल्ट मिल गया, 4 दिन तो तुम्हारे ऐसे बीत गए। हम्म अब बाकी के हॉस्पिटल वाले तुम्हें 10 दिन रखेंगे तो 14 दिन तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें घर पे 7 दिन रहना पड़ेगा मेडिकल दवाइयों हम्म। के साथ, तो तुम्हारा हाँ कितना हो गया? 21 days हो गया। 21 days आर हाँ। मोर देन इनफ फॉर इट। एक्चुअली स्पीकिंग टू अ डॉक्टर, कोविड डॉक्टर, कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के साथ लाइव जा रहा था कि मैं पूछ रहा था कि क्या हालत है, कैसा है, क्या सीन है। शी वाज कर्नाटका, बैंगलोर है कि नहीं पता नहीं, कर्नाटका से थी। तो वो बोल रही थी कि टेस्टिंग का ऐसा है ना कि एक दो बार, मतलब एक बार टेस्टिंग होता है, ठीक है, फिर पता चला कि पॉजिटिव आ गया, तो वो वापस, जरूरी नहीं है कि वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ गया, ठीक है, कि नेगेटिव आ गया, अब जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही आपको रिलीज कर देंगे। पहली बार हाँ, नेगेटिव आते ही रिलीज तुरंत नहीं करते ना। बिल्कुल। यू आर केप्ट ऑन मॉनिटरिंग फॉर लाइक सम मोर डेज, 2 दिन के लिए और 7 days मॉनिटरिंग किया मोर, है। मुंबई में अच्छा 7 days। अच्छा, 7 डेज मोर, तो 7 डेज और मॉनिटरिंग के बाद वापस टेस्ट होता है। फिर तुम्हारा वापस फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव आ गया तो तुम्हें वापस से 7 दिन रखेंगे। तो अच्छा दैट ओके। पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, हम्म लाइक क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्वारंटीन सेंटर में हमारा खाना पीना तो फ्री में आ नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट इज ये सपोज खाना टू पे। खाना के लिए एक क्वेश्चन है बाय सोनाली सचदेव, और वो पूछ रही है कि कांट योर फैमिली सेंड फूड। They can send food, but you're not supposed to ask them to send food because, bro, you need to understand. You need to have some empathy for your family. They're हाँ। already stressed because घर का एक लड़का या लड़की क्वारंटीन हम्म सेंटर में, they are fighting कोरोना वायरस। यार हम्म। उनका वो पहले से मेंटल ट्रॉमा में तुम्हारे घर वाले गुजर रहे हो, अब तुम हाँ एक और मेंटल ट्रॉमा दे रहे हो कि दिन में 2 बार खाना बना के डब्बा बना के कोरोना सेंटर में छोड़ना। एंड कोरोना सेंटर इज अ वेरी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का चांसेस होता है वहां पे। तो would करेक्ट। you really want your family members to get infected because of that, or your neighbors or friends to get infected because of that? ठीक है। Khana allowed है absolutely, but people discourage, doctors discourage. Even you're not supposed to, you can totally order from Zomato, but यार कम ऑन यार, जोमेटो वाला भी जो लड़का है 18-20 साल का, अगर उसे हो गया तुम्हारे वजह से, वो अपने घर हाँ गया, उसकी करेक्ट मम्मी को गया, तो यार वो गिल्ट में तुम रह पाओगे क्या? करेक्ट तो करेक्ट। पीपल डोंट रियली ऑर्डर फूड फ्रॉम दैट, हाँ। लाइक और मतलब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि ये बोलते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी और को और भी डिजीजेस है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई फिट एंड फाइन बंदा है, वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री अब्रॉड है, या फिर कोई बाहर घूमते घूमते किसी के कांटेक्ट में आने से पॉजिटिव हो गया, बट जिसको और भी डिजीजेस है उसको चांसेस ज्यादा है क्या?
यस, सो डिजीज तो सबको हो जाएगा, मतलब आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग वेरी सिनिकल राइट नाउ, बट आई जेन्युइनली बिलीव मुंबई में 70-80% लोगों को तो हो ही जाएगा। ये लॉकडाउन के बाद तो छुट्टे में बट रहा है वायरस लोगों को। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन केस जिसमें एक फैमिली ने सिर्फ एक फ्यूनरल अटेंड किया था, 20 लोगों ने एक औरत का, एंड शी वाज कोरोना पॉजिटिव। पता नहीं चला था, उसके फ्यूनरल के बाद पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो व्हाट? Yeah, so she basically went to the hospital. She died in the hospital's waiting zone. They did a swab test and उसका टेस्ट आने में 3 दिन लगा, बट सेकेंड डे पे उसका फ्यूनरल करवा दिया था फैमिली वालों ने। तो जितने भी लोग आए थे, 25 लोग फ्यूनरल अटेंड किए थे, 20 लोग पॉजिटिव हुए थे। बट वो 20 लोग भी सारे असिम्टोमेटिक थे, सारे के सारे असिम्टोमेटिक थे। सब लोग 20 दिन में, मेरे दोस्त लोग ही थे, सब लोग क्वारंटीन सेंटर में 10 दिन वो लोग क्रिकेट खेले, पत्ते खेले। हॉस्पिटल से क्या इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या लेके जा सकते हो आप हॉस्पिटल में? इंस्ट्रक्शन क्या है? I actually made a list of things you can carry. So I have this page, like very mediocre shitty meme page called Andheri West Shit Posting. Yeah, so उसमें मैंने एक प्रॉपर लिस्ट डाला था that what all things you can bring to a quarantine center, what all things you can bring to a hospital. Ideally एक हॉस्पिटल में जिम के जितने भी तुम्हारे कपड़े जो जल्दी सूख जाते हैं, like they're made of nylon or something, some other funny material, synthetic material. तो जिम के शॉर्ट्स, टी शर्ट और ब्रीफ्स पहन के तुम जा सकते, यू नीड टू कैरी दीज थिंग्स, जो अगर तुम्हें साफ भी करना है तो तुम सिर्फ सिंक के सामने उसको थोड़ा रगड़ दो, निचोड़ दो और वो साफ हो गया। और उसको तुम लटका दो, तुम्हारे बेड का जो वो पाइप लगा रहेगा उसको लटका दो, सूख जाएगा। वो हो गया। यू नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ सैनिटाइजर्स, लाइक हैंड सैनिटाइजर। यू नीड टू कैरी ट्यूब्स में जो तुम्हारे साबुन या फिर सोप होता है वो। टावल तुम्हें मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट तुम्हारे यहाँ की अच्छी है, अगर नहीं है तो तुम्हें वो जो पतला वाला टावल होता है ना, एकदम पतला वाला, मैं जाड़ा वाला नहीं बोल रहा, जो होटल रूम से मिलते हैं, जो पतला वाला होता है, समझ गया। सो या यू नीड टू कैरी दैट, यू नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ स्नैक्स। हाजमोला इज योर फ्रेंड। ओके, the food is gonna be, you never know what kind of food you come across, but you have to eat that food. So hajmola can be really handy, and all such condiments जैसे ऑरेगनो हो गया या फिर अचार हो गया या कुछ, ये सब लेके आ जाओ यार अपने साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिश्यू पेपर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर टू वाइप थिंग्स अराउंड, एंड आई वुड नॉट रियली एडवाइस यू टू बाथ इन अ हॉस्पिटल्स वार्ड। So what you can do is you can take tissues, you can spray some hand that sanitizer thingy, and you need to wipe your body. तो तुम्हारे बॉडी पे जो बैक्टीरिया या स्वेट है वो अपने आप निकल जाएगा, and that would not you have to compromise, man. You have to bath like an astronaut. That's it. What was the condition of the center you were quarantined? It was absolutely nice. It was a new property. It was supposed to be a small scale business center. बट वो लोग बेच भी रहते अपने जो प्लॉट, ये जो फ्लैट्स वगैरह थे, तो वहां पे मुझे शिफ्ट किया था। तो द प्रॉपर्टी वाज वेरी न्यू, फ्लोरिंग अच्छी थी, लाइट्स ठीक थे, पर्सनल पंखा मिल रहा था, खाना वगैरह भी टाइम पे आ रहा था, एंड द स्वीटेस्ट पार्ट इज द वार्ड बॉयज एंड एवरीवन वुड कॉल यू सर फॉर सम रीजन। अच्छा, इन द सेंटर। अच्छा, तो मतलब जब पता चला कि फाइनल जब टेस्ट हुआ तब पता चला कि नेगेटिव आ गया है, तो तुरंत यू वर बैक होम? No, so they have changed this policy. When I was admitted, उसके 2 दिन बाद ही, तकरीबन 2 दिन नहीं, 3-4 दिन के बाद, that was on 11th or something, they changed the entire policy. So पहले क्या था, अगर आप पॉजिटिव हुए तो 14वें दिन आपको टेस्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव निकले तो आपको दूसरे सेंटर शिफ्ट कर देंगे, अगर आप पॉजिटिव है तो 5 दिन आपका कोर्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो that puts a lot of pressure on government, but the ICMR people, then you need to know the doctors in ICMR, वो लोग कोई politicians तो है नहीं, they are doctors, like, and they are researchers and they have a lot of integrity. So अगर वो लोग ने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि एक इंडिया का जो पेशेंट है वो 10 से 12 दिन में ठीक हो रहा है, 96 to 97% of them, then let's just keep them in isolation for 10 to 12 days, and they could automatically go back to the quarantine for another 7 days, and once they complete their entire 17 to 18 days का period, they can straight away go back to the society. So there is no exit test. There is no exit test. एक बार तुम्हारा टेस्ट हो गया तो उसके बाद तुम्हारा वापस टेस्ट नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत है कि खर्चा वाला को लेके, कि बहुत जन ये बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए पर डे का भी बेड्स का खर्चा आ रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट एक भी रुपए नहीं लगा, आपका सिर्फ 10 रुपए लगा। मेरा सिर्फ 10 रुपए लगा, अरे 60 रुपए मेरे वॉलेट से गया। तो ये क्लियर करो। ये मैं बताता हूँ। तो सो आई वुड से यू, मेरे वॉलेट जो मैं लेके गया था, जब मेरे को फर्स्ट टाइम एम्बुलेंस में उठा के लेके गए थे बीएमसी वाले,
से जब मैं घर पे आया, दरवाजा मैंने खोला ऐसा, मेरे जेब से सिर्फ 60 रुपया खर्चा हुआ है कैश में। अब बोलोगे अच्छा। कैसे खर्चा हुआ है, तो मेरे क्वारंटीन सेंटर में तो मेरे को 1 रुपया लगा नहीं, सब स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे था, एम्बुलेंस भी स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे था। अब क्वारंटीन सेंटर से हॉस्पिटल भी मैं स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे गया। हॉस्पिटल में अगर मैं स्ट्रेचर पे जाता या मैं ऑक्सीजन मास्क में जाता, तो जो क्लर्क बैठा रहता है, जो रजिस्टर करता है सब लोग का नाम, मुझसे वो भी नहीं मांगता। पर वो देखा कि लड़का खुद 2 थैली लेके उठा के उतर गया है, बैठा है, हंस रहा है, दोस्त लोग को फोन कर रहा है, बोल रहा है मेरी लग गई, मेरी लग गई। तो वो खुद सामने से बोला कि 10 रुपए का केस पेपर बनाना पड़ेगा। जो मुंबई में अगर आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपको एक 10 रुपए का केस पेपर बनाना पड़ता है, जो 3 महीने तक आपको ओपीडी का एक्सेस देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। ठीक है। तो 10 रुपए मैंने उसको दिया, उसको भी लेने में शर्म, वो ले भी नहीं रहा था, बोला कि एक डब्बा है उसमें रख दो, पॉजिटिव पेशेंट है, कांट टेक मनी फ्रॉम मी। एंड उसने मेरे को 10 रुपए का रसीद दिया। मैं अंदर गया, मेरा एक्सरे हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। दे वांटेड टू सी if I have HIV, if I have some other disease, मलेरिया और समथिंग, तो लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं और एक्सरे से मेरे चेस्ट का भी हालत देख लेते हैं कि मेरे चेस्ट में कितना डैमेज हुआ है। लकीली कुछ भी नहीं हुआ था मेरे चेस्ट में, लाइक आई वाज फाइन। एंड जो क्या बोलते हैं, मेरा ब्लड टेस्ट भी लोग ने करा लिया था, तो उसमें कुछ भी शेड ही नहीं निकला कि मतलब कोई भी बीमारी नहीं निकला। ओके फाइन, ठीक है। सो एंड उसके बाद इन लोग ने मेरा ट्रीटमेंट किया एंड मुझे छोड़ दिया 3.5 दिन के बाद। एंड खाना वॉज रियली गुड हॉस्पिटल का। आई एम नॉट लाइंग, कूपर हॉस्पिटल इनको खाना इस्कॉन टेम्पल सप्लाई करता है। ओह अच्छा। या सो जो भी लोकल, सो कोई मुंबई का हॉस्पिटल उसमें गुरुद्वारा से खाने आते हैं, तो उनका स्टेट गवर्नमेंट और गुरुद्वारा का कुछ सेटिंग हो जाता है कि हम आपको खाना पैसा देंगे, आप बना के बस भिजवा देना। तो इस्कॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। तो खाना जबरदस्त था कूपर हॉस्पिटल का। दबा के मैंने लाइक 2 रोटी 3 रोटी खाने वाला बंदा 6 रोटी चाप रहा है, तो दबा के खाया मैं। और मैं वापस आया तो मुझे सिर्फ रिक्शे में 50 रुपया कूपर हॉस्पिटल से, मेरे घर का 30 रुपया होता है रिक्शे का। तो वो बोला कि भैया देखो सीजन है नहीं, तुम्हारी आंख भी बहुत लाल लग रही है, तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, 50 रुपए दे देना मुझे। तो मैं बोला भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर लाइक सैनिटाइज वगैरह करके, मतलब स्प्रे वगैरह मार के मैं बैठा, और मैं निकल भी गया तो स्प्रे वगैरह कर दिया कि ये बेचारे को क्यों मैं वो दे दूं। तो 50 रुपए उसने मुझसे लिए। तो 10 रुपए हॉस्पिटल में, 50 रुपए रिक्शे वाले ने, 60 रुपए में मैं घर पे पहुंचा हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरी मम्मी को तो प्रॉपरली सरकार लेके आई, एम्बुलेंस से वापस छोड़ दी। मेरी मम्मी का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, मेरी बहन का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, और मैं 60 रुपए में वापस घर पे आ गया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, आप टेंशन मतलब पैसे के बारे में आप मत सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, जुगाड़ अपने आप निकल जाएगा आपका। सही है, ठीक है। तो अभी जैसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि अब हेल्थ कैसी है, क्योंकि अब जब वापस ठीक होके आ गए, so now for the people, I'll interrupt you here. So for the people who are watching, Balram is also counseling the COVID patients where he got recovered. So he's going to the COVID hospital, is going to the quarantine center, and then he's counseling the patients who are suffering there. तो यार एक बात बताओ, ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये कहाँ से आती है? पहला बात तो ये। दूसरा बात कि मतलब यार काउंसलिंग में क्या होता है, पूरा सीन क्या है, लाइक व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग? सो जब हॉस्पिटल से मैं बाहर गया तो अगले 7 दिन तक तो मैं डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था अपने घर के बेडरूम में, क्योंकि मेरा वजन 4 किलो कम हुआ था ये 9.5 दिन के अंदर। ठीक है। 4 किलो मेरा वजन एब्सोल्युटली गिर गया था। सो मेरी मसल्स वगैरह पावर नहीं थी चलने की। इनफैक्ट मुझे भी पता है, रिक्शे से उतर के जब तक मैं घर जा रहा था या हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जो गेट तक जा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, लाइक थक गया था, प्लस सामान भी था। तो एकदम आंख से पानी आ रहा है, आई कुड फील माई फ्लैश एंड माई बॉडी एंड माई बोन स्ट्रगलिंग। 7 दिन हुआ, फिर मैंने घर का खाना खाया दबा के, अच्छा पौष्टिक, और कुछ किया नहीं यार, घर पे बैठा हुआ था, सिर्फ मीम्स बना रहा था। तो अपने आप ठीक हो गया मैं। और जब मैंने 14 दिन का अपना क्वारंटीन रिकवर किया, जो उसके बाद हो जाता है, अभी भी मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होते रहती है, पर डॉक्टर ने बोला 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो वापस यार वापस तो मतलब ये तो श्योर है ना कि वापस होगा नहीं, सो यू कैन गो। वापस बिल्कुल नहीं होगा, एक बार भी नहीं होगा। और मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आप आप स्प्रेड भी नहीं करोगे। तो आप बोलोगे कि यार तू सेंटर में जाता है, किसी का ड्रॉपलेट तेरे अंदर आ गए तो ड्रॉपलेट एक्सपांड हो जाएंगे। पूरा पीपी किट पहन के जाना पड़ता है या फिर कुछ नहीं ऐसे ही? हाँ, अरे कंप्लीटली पूरा, जितना जो एक सर्जन पहनता है हॉस्पिटल में वो। अब सबसे बड़ा डर ना इंडिया में लोगों को कोरोना वायरस का नहीं रहता है, लोगों को डर रहता है कि इससे कितना खर्चा होगा मेरा। सब अब मेरे कितने सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग 5-5, 6-6 लाख रुपया जो लोग ने म्यूचुअल फंड में लगा के रखा था, मार्केट में लगा, सब लोग ने निकाल दिया। और लोग ने अपने पास रखा है कि अगर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेरी मम्मी को, तो मैं तुरंत पैसा निकाल के दे दूं। ठीक है यार, मेरा 60 रुपए में हुआ
ये बहुत कॉमिकल था ये, और मेरे को बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था यार कि छी यार यार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इनके लिए, या फिर कुछ भी नहीं है। सो अंदर से वो आ जाता। तो जब मैं हॉस्पिटल वो क्वारंटीन सेंटर में भी था 6 दिन, तो मैं सीनियर सिटीजन से जाके बात करता था, मैं बच्चे लोग से जाके बात करता था। डॉक्टर ही बोल देती थी कि यार तू जा, तू फिल्टर कॉपी वाला है, तू बात कर सकता है। तो मैं जाके बात तो मैं जाके बात कर लेता था उन लोग के साथ। एंड तो डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता था कि कोई पेशेंट है बहुत चिल्ला रहा है, तो यार 10 मिनट बात कर लो उससे, खुश हो जाएगा वो। तो वो जो गिल्ट था वो तो डॉक्टर ने ही फोन किया कि देख 14 दिन हो गया है, तू आने का मन है क्या तेरे को, तू आ जा, मेरा हेल्प हो जाएगा। तो मैं बोला यार आप हुक्म करो यार, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। मैं सीधा हाँ बोला, मैं सीधा घुस गया अंदर। एंड आई टॉक टू पीपल, सो आई टॉक टू पीपल द वे आई एम टॉकिंग टू यू, द वे आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, एकदम कैजुअली। ठीक है। पूरा अगर फॉर्मल भी अगर मुझे एक्सप्लेन भी करना है प्रोसेस कि आप कब निकलने वाले हो, तो मैं बोलूंगा भाई देखो अभी तुम्हारा ये हुआ है। तो आई मेक इट वेरी इनफॉर्मल, आई मेक इट वेरी चाय की टपरी पे बैठे, लालू की टपरी पे बैठ के कैसे बात करते हो वैसे मैं बात करता हूँ। तो दे रियली लाइक इट, लाइक एक वार्मथ आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। हाँ करेक्ट। कि आर यू स्टिल टेकिंग एनी मेडिकेशन? तो अभी भी मेडिसिन का क्या सीन है? तो कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर मुझे लगता है कि मेरा चेस्ट बहुत ज्यादा दुख रहा है, आई टेक अ पैरासिटामोल, दैट्स इट। बट स्टार्टिंग में था, जब मैं डिस्चार्ज हुआ था, तो उन्होंने यार इतना एक थैली भर के मुझे मेडिसिन दी थी। तो वो एक स्टार्ट का दिन के सुबह के 8, रात के 8, दोपहर के 6, तो उतनी गोलियां में खा रहा था 7 दिन 14 दिन। जब मेरा कोर्स पूरा हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि कभी ठंडी लगे तो पैरासिटामोल खा लो, या विटामिन सी खाते रहो, विटामिन सी की गोली, या फिर फ्रूट्स खाते रहो। तो दैट्स इट मैन। तो एक और क्वेश्चन था कि बहुत जन ये पूछ रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे लोग अभी हल्दी वाला दूध पी रहे ना, काढ़ा वाला पी रहे, हल्दी का दूध पी रहे, अदरक, ये वो सब, तो ये सब से इम्यूनिटी ठीक होती है या फिर क्या सीन है उसका? यार 6 महीना तो लगता है इम्यूनिटी बिल्ड होने में। तो अगर कोरोना वायरस के डर से तुमने मार्च के महीने में भी गेम स्टार्ट किया है तुम्हारा, तो मार्च अप्रैल में 3 महीने में तुम आधी इम्यूनिटी तो कर ली तुमने। अच्छा। तो और इम्यूनिटी इट्स नॉट लाइक कि है या नहीं है, इम्यूनिटी इज वेरी सब्जेक्टिव ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100%। अगर आपकी इम्यूनिटी 10% है, तो 3 महीने का जो आपने किया है, च्यवनप्राश दिन में 12 चम्मच खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, या फिर जो भी किया है तुमने, यार वो 12% का तुम्हारा ना 30% हुआ रहेगा जा जाके। सही है। तो यार एक मतलब फायदा होगा, आपको फायदा होगा, बट अच्छा है। बट मतलब उतना भी कतई ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना कर लिया तो अब तो मैं शक्तिमान हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ। ऊपर हॉस्पिटल के वार्ड में बैठ के गिन रहा था कि इधर से कितने स्ट्रेचर गए बॉडीज के। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं गिन रहा हूँ कि देख 1 गया, 2 गया, 3 गया, इतना गया। यार तुम अगले दिन न्यूज में छाप रहे हो कि सिर्फ 12 लोगों की डेथ हुई है पूरे मुंबई में, तो तुम किसको चला रहे हो? बट या गवर्नमेंट इज हाइडिंग नंबर्स बिग टाइम। बट इससे क्या हो रहा है कि लोगों में जो पैनिक है वो बहुत कम हो रहा है। मराठी में मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ा था कि तुम ना कोरोना वायरस से तुम्हें सिर्फ तब तक डर लगेगा जब तक तुम्हारे बैंक में पैसा है और तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम का सीन है। एक बार तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया और तुम्हारे घर जो बैंक में पैसे खत्म हो गए ना, तो यार कोरोना वायरस उतना खतरनाक तुम्हें लगेगा नहीं। फिर तुम्हें और खतरनाक चीज लगेगी, वो है पॉवर्टी या गरीबी। तो तुम उसको मिटाने के लिए फिर रोड पे चले जाओ। If there are some myths that you'd like to debunk about COVID, about the entire scenario. So when I had malaria, it was terrible. My body did not feel like, standing up. कोरोना में तो चले मैं बाथरूम वगैरह भी जा पाता था, बट मलेरिया में my family had to pick me up, assist me till the washroom, then I had to go to the washroom. बहुत सीन होता था। मुझे अभी भी लगता है मलेरिया, जो प्रोसेस है, it is malaria and dengue is more dangerous than COVID-19. बट स्टिल लेट्स जस्ट से अगर कल तुम्हें मलेरिया होता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड? यू टेल मी। कि मतलब अगर हो गया तो दवाई क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मतलब वो रहेगा कि यार 10 दिन शिट अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, मुझे घर पे बेड पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट थॉट ये रहता है कि मैं मर जाऊंगा। नहीं हुआ। बट लोग मरते हैं ना मलेरिया डेंगू से भी। अच्छे खासे फिटनेस फ्रीक्स मरते हैं मलेरिया डेंगू से। सेम थिंग विद कोरोना वायरस मैन। अगर तुम्हें आ रहा है कोरोना वायरस, व्हाट इज द फर्स्ट व्हाई लाइक मेरा भी था, जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मैं लिख रहा था कि मेरे कहाँ पैसे लगे हुए, या फिर कहाँ मैंने किसको दिए हुए, किसकी मदद। व्हाई एम आई डूइंग दिस मैन? जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ बेसिक डिजीज, like a viral fever, like typhoid, and just take your medicines, you're gonna be fine, there's nothing to be worried about. And जो डर मचा हुआ है, और कोरोना वायरस का तुम वो भी देखोगे, जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 2%, 3% ग्लोबली। तो 100 में से यार सिर्फ 3 लोग की डेथ हो रही है, 97 लोग जिंदा है अभी, और 3 लोग में भी बहुत लोग सीनियर सिटीजन है, या फिर उनका सर्जरी ऑपरेशन कुछ ज्यादा बड़ा हुआ था, उनको हो रहा है। तो ठीक है, काम डाउन। ओके।
कि अभी भी बहुत लोग बाहर निकल रहे हैं अननेसेसरीली, तो ये जरूरी है क्या? मतलब बहुत कितना रिस्की है ब्रो निकलना लॉटरी है अभी? ये हाँ। प्रॉपर लॉटरी है। अगर आप बाहर निकल रहे हो बिना किसी रीजन चिल के लिए, भाई हवा चाहिए, भाई हम्म घर में कंटाला आ रहा है यार, बहुत हो गया, मुझे हवे के लिए बाहर जाना है, या यू आर हम्म प्लेइंग लॉटरी। हम्म So I assume that if so I'm like, this is a very personal thought, but I हम्म thought in the month of March that if my mom is gonna catch this virus, she would हम्म। for sure die because she has diabetes and whatnot. ओके ओके। But she survived. She हम्म survived. हम्म But in the hospital ward, I also saw a 19-year-old guy. He was a ओके। Zomato delivery guy. He died. 19-year-old guy. शिट। There were 29-year-old guy who died after that. There was 45-year-old man who died. हम्म Absolutely fit and fine guy with no problem whatsoever. So हम्म if you're going out thinking कि यार 3% की मोर्टेलिटी रेट है, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं है, मेरी फैमिली में तो सब यंग है, 60 साल के कम के, या तुम लॉटरी खेल रहे हो, तुम लेके आ जाओगे वायरस, तुम्हारे घर वालों को दे दोगे, तुम्हारे घर वाले में से अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या वो जो गिल्ट है तुम्हारा, उससे रह पाओगे कि यार मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी, जो भी है, उनकी डेथ हो गई थी इसके वजह से, क्योंकि मुझे हवा खाने उस दिन जाना था बाहर, या फिर हाँ कुछ करेक्ट करने आना करेक्ट था. So करेक्ट। that is a very important thing people should keep in their mind, that is it really worth it? ओके And if गॉट the इट, ठीक है answer is no, then no. ठीक है। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन बाय संयोगिता जैन और वो पूछ रही है एनी एडवाइस फॉर पीपल अबव 65 इयर्स? Just eat healthy food, absolutely healthy food. Take your medicines regularly. Keep your blood sugar in check. Anything above 200 is a problem. Anything below 100 is a problem. 100 से 200 के बीच में अपना ब्लड प्रेशर अपना शुगर रखने की कोशिश करो. कीप योर बीपी इन चेक. वॉच गुड सीरियल्स. वॉच लाइक अच्छा कंटेंट देखो जिससे तुम्हें स्ट्रेस नहीं आए. न्यूज चैनल प्लीज मत देखो. आप सीनियर सिटीजन हो, आप न्यूज चैनल देखोगे तो आप में डर आ जाएगा. Don't do that. Don't do that with your body. Just like watch. I genuinely feel people who watch cartoons with their grandchildren, they're the best kind of people. आप कार्टून्स देखो, आप चिल करो फैमिली के साथ, ईट गुड फूड, लाइक दबा के, अगर आप 3 रोटी खाते हो आप 4 रोटी खाओ, बिकॉज फूड इज समथिंग यू रियली नीड इन दीज टाइम्स एंड यू गोना सर्वाइव. सो मैं सेंटर पे जाता हूँ. सो लास्ट संडे देयर वर 12 to 15 पीपल हु आर अबाउट द एज ऑफ 65 इन द सेंटर, एंड उनमें से एक को भी खांसी नहीं आ रही थी और एक को भी बुखार नहीं हो रहा था. Okay. And the common factor around that was they did some kind of activity, or they kept their diabetes in. अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि they are very serious and disciplined when it comes to their health. कि उनको पता है कि उनका डायबिटीज लेवल क्या है, उनका शुगर लेवल क्या है, उनका बीपी लेवल क्या है. So that is what you're supposed to do, in order to keep yourself safe. That's it. सही है. ओके गॉट इट. एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विल रैप इट अप इन लाइक 2 minutes. ब्रो व्हाट डिड यू डू टू रिकवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स? ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक करने के लिए क्या किया? Yoga. So there are ways to, you can call it breathe in breathe out exercises, but do deep down या थर्ड स्टैंडर्ड में स्कूल में जो योगा कराते थे वही करा रहे तुम्हें. So breathe in breathe out क्या है यार? योगा. ये तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है योगा की, so वो मैं कर रहा था. मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे लगा कि यार ओके दिस इज हाउ अस्थमा पीपल फील. ठीक है. या सो मैं लंबी सांस लेता हूँ और वर्कआउट का क्या करना चाहिए? मतलब शुड एवरीबॉडी एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप फिटनेस इन चेक एंड एवरीथिंग? नॉट नेसेसरी डूड, नो नॉट नेसेसरी. वही मैं बोल रहा हूँ कि यार अचानक से तो तुम विराट कोहली नहीं बनोगे. अगर तुम 2 महीने एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो यार सिर्फ अच्छा खाना खाओ, ठीक रहोगे तुम. One last advice to everybody who's watching. Please don't watch news. Please, unfollow every bad kind of people, political opinionated people जो काफी नकारात्मकता फैला रहे हैं. If you really want to follow, people on Instagram, like follow influencers. Like influencers को follow करो जो cute लड़की लोग हैं. Yes. उन लोगों को. अरे हाँ, okay. I get your point, bro. I get your point. Yeah. जितनी भी if you have mention कर दो comment में बलराम भी. Yeah, so like if you have a crush on someone, like a female celebrity or a male celebrity, just follow them. Just keep your timeline as clean as possible, because the last thing you should see in this moment of stress and tension around is कि ये हॉस्पिटल में देखो बॉडी कैसी रखी हुई है, उस हॉस्पिटल में देखो आंटी ऐसी पड़ी हुई है, इस हॉस्पिटल में देखो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंटी देखो रो रही है. लास्ट 15 सेकंड. That's it. So that is how you keep yourself.
ठीक है मैन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, you're a warrior, और अबे I'm यार नहीं so यार, so so happy to be speaking to you, fit and fine. हाँ man, हाँ तो बॉम्बे यार कभी